ایران کی جانب سے پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی، پنجگور میں میزائل حملے کے جواب میں پاکستان کے ایران میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر ٹارگیٹڈ حملے۔ دفتر خارجہ کے مطابق آپریشن کو مرگ بر سرم 4 کا نام دیا گیا ہے۔ پاکستان اپنے عوام کے تحفظ اور سلامتی کے لیے تمام ضروری اقدامات کرتا رہے گا۔ پاکستان اسلامی جمہوریہ ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا مکمل احترام کرتا ہے۔ کارروائی کا واحد مقصد پاکستان کی اپنی سلامتی اور قومی مفاد کا حصول تھا، جس پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔ پاک فوج نے ایران کے علاقے سستان میں کیے جانے والے حملے پر وضاحت دے دی ہے۔ آئی ایس بیان کے مطابق 18 جنوری کی صبح پاکستان نے ایران پر حملہ آور ڈرونز، راکٹس اور دیگر ہتھیاروں سے آپریشن کیا۔ سستان میں بلوچستان لبریشن آرمی اور بلوچستان لبریشن فرنٹ کی پناہ گاہوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ ایران میں مارے گئے دہشت گرد پاکستان میں کارروائیوں میں ملوث تھے۔ پاک ایران کشیدگی کے پیش نظر نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ آج رات پاکستان پہنچیں گے۔ وزیر اعظم کی طرف سے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کیے جانے کا امکان ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں پاک ایران کشیدگی پر غور ہوگا۔ اجلاس میں آرمی، نیول اور فضائیہ چیفز شریک ہوں گے۔ بلوچ شرپسندوں کے خلاف ایران کے آپریشن پر بریفنگ دی جائے گی۔ امریکی محکمہ خارجہ کی پاکستانی حدود میں ایران کے حملے کی شدید مذمت۔ ترجمان میتھیو ملر نے کہا کہ تہران نے 3 ہمسایہ ممالک کی خود مختار سرحدوں کی خلاف ورزی کی۔ ایران خطے میں دہشت گردی کا سب سے بڑا اسپانسر ہے، اس کی وجہ سے امریکی فوج عراق میں موجود ہے۔ پاک ایران کشیدگی پر چین کی جانب سے ثالثی کی پیشکش۔ کراچی میں چین کے قونصل جنرل یانگ جوڈونگ کا کہنا ہے کہ پاک ایران اختلافات بات چیت سے حل کیے جا سکتے ہیں۔ دونوں ملکوں سے کہتے ہیں تحمل کا مظاہرہ کریں اور تعلقات اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق آگے بڑھائیں۔ چین پاک ایران اختلافات دور کرنے کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی سے ایرانی ہم منصب کا ٹیلی فونک رابطہ۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے بتایا کہ نگران وزیر خارجہ نے حملے کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ اس واقعے سے پاکستان اور ایران کے تعلقات کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ پاکستان اس اشتعال انگیز کارروائی کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ یک طرفہ اقدامات سے علاقائی امن و استحکام کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ سابق وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ ہمیں کشیدگی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ایران سے تعلقات مزید خراب نہ ہوں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ ہمارے دور میں ایران کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رہے۔ سعودی عرب اور ایران تنازع کے حل کے لیے پاکستان نے بھرپور کردار ادا کیا تھا۔ پیپلز پارٹی کی رہنما شہری رحمان نے کہا کہ پاکستان نے ایران کو کافی سوچ سمجھ کر جواب دیا۔ آپریشن مرگ پر سرم 4 سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے شہری رحمان نے کہا کہ بہتر ہوگا کہ دونوں ممالک اس قسم کے تنازعات کو مزید بڑھنے نہ دیں۔ پاکستان کے ایران کے ساتھ پرانے روابط ہیں، تعلقات بہتر کرنے کے لیے ضرورت ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ سمیت مقبوضہ مغربی کنارے میں ڈرون حملے اور زمینی تیراندازی کو تیز کر دیا۔ مغربی کنارے میں حملے میں کم از کم 7 افراد شہید اور متعدد
जख्मी हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर से जारी इसराइली हमलों में 24,448 अफराद शहीद, 61,504 जख्मी हो चुके। अब तक शहीद बच्चों की तादाद 10,000 से तजावुज कर गई। मुल्क भर से कौमी और सूबाई असम्बलियों की जनरल नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवारों की तफसीलात जारी। कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर मजमूई तौर पर 17,816 उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। कौमी असम्बली के 266 हल्कों में 5,121 उम्मीदवार मैदान में मौजूद हैं। सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों पर 12,695 उम्मीदवार मुल्क भर में 4 नशिस्तों पर ख्वाजा सराबी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। पांच जजों ने मुझे ना निकाला होता तो कोई बेरोजगार ना होता और डॉलर की कीमत आज भी 100 रुपए होती। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का हाफिजाबाद में जलसे से खिताब, बोले अगर मुझे ना निकाला जाता तो हर घर खुशहाल होता, काश्तकार खुशहाल होता, बिजली और गैस के बिल महंगे ना होते, रोटी और नान आज भी 4 रुपए का मिलता। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से कैनेडियन हाई कमिश्नर की मुलाकात। ऐवान वज़ीर आला में होने वाली इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पंजाब हुकूमत और कैनेडा के दरमियान इफरादी कुव्वत को कैनेडा भिजवाने के हवाले से मुजवजा मुआहदे पर बातचीत की गई। मुलाकात में तहफ़्फ़ुज़ माहौल ख़ुसूसन स्मॉग से निपटने के हवाले से ताउन बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। लाहौर समेत मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध बरकरार, शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो गई। तर्जमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक शदीद धुंध की वजह से हद निगाह सिफर होने पर मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। मोटरवे M1 को रशकई से पेशावर टूल प्लाजा और बुरहान से सवाबी, M2 को इस्लामाबाद टूल प्लाजा से ठोकर न्याज बेग तक बंद कर दिया गया। नामवर मुफक्किर, शायर, अदीब वासिफ अली वासिफ की आज 31वीं बरसी मनाई जा रही है। उनके अक़वाल आज भी दिलों को जज्बा ताज़ा बख्श रहे हैं। अगर एक तरफ इस शख्सियत की उर्दू और पंजाबी शायरी हमें असली हकीकतों से आश्कार करती नजर आती है, तो दूसरी तरफ उनकी तसानीफ में मौजूद उनके अक़वाल तादीर दिलों को जज्बा ताज़ा बख्शते रहते हैं। नामवर शायर और अदीब वासिफ अली वासिफ 18 जनवरी 1993 को खाल्के हकीकी से जा मिले थे। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि ईरान की जानिब से फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी और पंजगूर में मिसाइल हमले के जवाब में पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई। ईरान में दहशत गर्दों के ठिकानों पर टारगेटेड हमले कर दिए गए। मुतादिद हालात। दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरान के किसी सिविलियन या फौजी हदफ को निशाना नहीं बनाया गया है। ईरान के सूबे सिस्तान में दहशतगर्दी की पनाहगाहों पर टारगेटेड हमले किए गए। तर्जुमान के मुताबिक ऑपरेशन को मर्ग पर सरमचार का नाम दिया गया। इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन में मुतादिद दहशतगर्द मारे गए हैं। गुज़िश्ता कई बरसों के दौरान पाकिस्तान दहशतगर्दों की पनाहगाहों से मुतालिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात ईरान के साथ शेयर करता रहा है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों की मौजूदगी और सरगर्मियों के ठोस शवाहिद के साथ मुतादिद ड्रोन्स भी शेयर किए हैं, लेकिन संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल न होने की वजह से नाम नहाद सरमचार बेगुनाह पाकिस्तानियों का खून बहाते रहे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कार्रवाई नाम नहाद सरमचारों पर मुसद्दिका इंटेलिजेंस की रोशनी में की गई है। ये कार्रवाई पाकिस्तान के तमाम खतरात के खिलाफ अपनी कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के गैर मुतज़लज़ल अज़म का मज़हर है। दफ्तर खारजा ने तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान अपनी आवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए तमाम जरूरी इक़दाम करता रहेगा। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया ईरान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत का मुकम्मल एहतराम करता है। कार्रवाई का मकसद पाकिस्तान की अपनी सलामती और कौमी मफाद का हसूल था, जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। बैनुल अक़वामी बरादरी के एक जिम्मेदार रुकन के तौर पर पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के असूलों और मकासद को बरकरार रखता है। पाकिस्तान कभी भी अपनी खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत को किसी भी हालत में चैलेंज करने की इजाजत नहीं देता है। ईरान एक बिरादर मुल्क है और पाकिस्तानी ईरानी अवाम के लिए बहुत इज्जत और मोहब्बत रखते हैं।
तर्जुमान दफ्तर खारजा का मजीद कहना था कि हमने हमेशा दहशतगर्दी की लानत समेत मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए बातचीत और ताउन पर जोर दिया है। मुश्तरका हल तलाश करने की कोशिश जारी रखेंगे। 2 रोज कबल ईरान की जानिब से पाकिस्तान की फजाई हदूद में हमले के नतीजे में 2 मासूम जाँ बहक और 3 बच्चियां जख्मी हो गई थी। पाकिस्तान ने अपनी फजाई हदूद की बिला इश्तियार खिलाफ वर्जी और पाकिस्तानी हदूद में हमले की शदीद मज़म्मत की थी और कहा था कि खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल और इसकी संगीन नताज निकल सकते हैं। दूसरी जानिब ISPR ने ईरान के इलाके सिस्तान में किए जाने वाले हमले पर वजाहत दे दी है। ISPR की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि 18 जनवरी की सुबह पाकिस्तान ने ईरान में स्ट्राइक्स की। इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां की जो पाकिस्तान में हालिया हमलों में मुलव्वस थे। पाकिस्तान ने हमलावर ड्रोन्स, रॉकेट्स और दीगर हथियारों से ऑपरेशन किया। ISPR का कहना है कि सिस्तान में बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट की पनाहगाहों को कामयाबी से निशाना बनाया। ये ऑपरेशन इंटेलिजेंस की बुनियाद पर किया गया और इस ऑपरेशन का नाम मर्गे बर सरम 4 रखा गया था। ऑपरेशन बहुत एहतियात से किया गया ताकि बड़े पैमाने पर नुकसान ना हो। ISPR का कहना है कि निशाना बनाए गए ठिकाने बदनामे जमाना दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे थे। दहशतगर्द पाकिस्तान में कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। ISPR के मुताबिक निशाना बनाए गए ठिकाने बदनामे जमाना दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे थे। दहशतगर्दों में दोस्ता उर्फ चेयरमैन, बजर उर्फ सौगत, साहिल उर्फ शुफक, असगर उर्फ बशाम और वजीर उर्फ वजी शामिल हैं। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के खिलाफ पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत के लिए मुकम्मल तैयार है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और किसी भी मुहिम जोई के खिलाफ हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। पाकिस्तानी अवाम की हिमायत से तमाम दुश्मनों को शिकस्त देने के अपने अज़्म का इआदा करते हैं। मजीद आपको बताएं कि ईरान में पाकिस्तान के सफीर मुदस्सर टीपू वतन वापस पहुंच गए हैं। ईरान में पाकिस्तान के सफीर मुदस्सर टीपू दफ्तर खारजा की हिदायत पर वतन वापस आए हैं। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज सफीर को वापस बुलाने का फैसला किया था। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच ने अपनी मुख्तसर प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया था कि ईरान से अपने सफीर को वापस बुला लिया है और ईरानी सफीर भी फिलहाल पाकिस्तान नहीं आ रहे। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने बताया था कि पाकिस्तानी हुकाम ने ईरान के तमाम सफारती दौरे मुलतवी कर दिए हैं और पाकिस्तान ने अपने फैसले से ईरानी हुकूमत को भी आगाह कर दिया है। तर्जुमान ने मजीद कहा था कि चाबहार में जारी पाक ईरान ज्वाइंट बॉर्डर ट्रेड कमेटी का इजलास भी मुलतवी कर दिया गया है। पाकिस्तान की जानिब से अपना वफद ईरान से वापस बुलाने पर इजलास को मुलतवी किया गया है। अब आपको बताएं कि पाक ईरान कशीदगी पर चीन की जानिब से सालसी की पेशकश की गई है। कराची में चीन के कौंसल जनरल यांग जुडोंग का कहना है कि पाक ईरान इख्तलाफात बातचीत से हल किए जा सकते हैं। यांग जुडोंग ने कहा कि पाक ईरान ताल्लुकात पुरअमन तरीकों से हल किए जा सकते हैं। दोनों मुल्कों से कहते हैं तहम्मुल का मुजाहरा करें और ताल्लुकात अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक आगे बढ़ाएं। कौंसल जनरल ने मजीद कहा कि ताल्लुकात आलमी इक़दार के मुताबिक आगे बढ़ाएं। पाकिस्तान और ईरान बैठकर बातचीत से मसाइल हल कर सकते हैं। चीन अच्छे दोस्त पाकिस्तान और ईरान से कहता है हम किरदार के लिए तैयार हैं। उनका कहना था कि चीन पाक ईरान इख्तलाफात दूर करने के लिए तामीरी किरदार अदा करने के लिए भी तैयार है। दूसरी जानिब तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना था कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सालसी के लिए तैयार हैं। फ्रीकैन तहम्मुल का मुजाहरा करें और कशीदगी में इजाफे से बचें। चीन कशीदा सूरत हाल में कमी के लिए तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि पाक ईरान कुशीदगी के बाद सूरत हाल पर गौर के लिए कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया गया है। जराये के मुताबिक ईरान से कुशीदगी के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के बाद निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ अपना दौरा डेविस मुख्तसर करके आज रात वतन वापस पहुंचेंगे। इस हवाले से कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल दोपहर 2:45 पर तलब किया गया है। जराये के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में आर्मी चीफ समेत दीगर सर्विसेज चीफ शरीक होंगे। इजलास में खुफिया इदारों के हुकाम भी शरीक होंगे। इजलास में पाक ईरान कुशीदगी पर ब्रीफिंग की जाएगी। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अमन अमान की सूरत हाल पर
फैसले भी किए जाएंगे। साबिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हमें कशीदगी से बचने की कोशिश करनी चाहिए कि ईरान से ताल्लुकात मजीद खराब न हो। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमारे दौर में ईरान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे। सऊदी अरब और ईरान तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान ने भरपूर किरदार अदा किया था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा का कहना है कि दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान और ईरान को मुश्तरका हिकमत अमली बनानी चाहिए। पाकिस्तान और ईरान में बलोच अलहदगी पसंद तहारीक चल रही है। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि पाकिस्तान और ईरान को इन तहारीक से मुश्तरका तौर पर निपटने की जरूरत है। जबकि पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान कहती हैं कि पाकिस्तान ने ईरान को काफी सोच समझ कर जवाब दिया। ऑपरेशन मरकबर सरमचार से मुतालिक गुफ्तगू करते हुए शेरी रहमान ने कहा कि पाक ईरान सरहद पर कई साल से इस किस्म के मसाइल होते रहे हैं। शेरी रहमान ने कहा कि बेहतर होगा कि दोनों ममालिक इस किस्म के तनाजात को मजीद बढ़ाने न दे। पाकिस्तान के ईरान के साथ पुराने रवाबित हैं, ताल्लुकात बेहतर करने की जरूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान और ईरान दोनों को अब तहमुल का मुजाहरा करना चाहिए। ईरान की जानिब से पाकिस्तानी खुद मुख्तारी पर हमला गैर मुतवक्किल था। पीपल्स पार्टी की रहनुमा का मजीद कहना था कि ईरान को अगर कुछ खदशात थे तो वो पाकिस्तान को आगाह करता। नाजरीन, ईरान के साथ कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने परवाजों की सख्त मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। मगरबी सरहदों पर फिजा में होने वाली हर सरगर्मी को सख्ती से मॉनिटर किया जा रहा है। ताज़ा सूरत हाल के पेश नजर मगरबी सम्त से आने वाली तमाम परवाजों से मुतालिक अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई है। जराये के मुताबिक सिविल एविएशन अथॉरिटी CAA को मगरब से पाकिस्तान की हदूद में आने वाली तमाम परवाजों की सख्त मॉनिटरिंग की हिदायत मौसूल हुई है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को ईरान समेत तमाम मगरबी परवाजों की तफसीलात इकट्ठी करने की हिदायत भी दे दी गई है। इससे कबल पहले मगरब की तरफ से पाकिस्तान आने वाली परवाजों की सख्त मॉनिटरिंग कभी नहीं हुई। ताहाल पाकिस्तान और ईरान की फिजाई हदूद कमर्शियल परवाजों के लिए खुली हुई है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC को ताहाल ईरान के लिए फिजाई हदूद की बंदिश के मुतालिक कोई हिदायत नहीं मिली। और नाज़रीन, अब कुछ बात करें सियासत की तो आपको बताएं कि 5 जजों ने मुझे ना निकाला होता तो कोई बेरोजगार ना होता और डॉलर की कीमत आज भी 100 रुपए होती। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का हफ्जाबाद में जलसे से खिताब, बोले हफ्जाबाद आकर कई साल पहले की यादें ताजा हो गई हैं। इस शहर और जिला के लोगों से मुझे बहुत प्यार है। कई सालों के बाद आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। नवाज शरीफ ने कहा कि मेरे लिए जज्बात पर काबू पाना मुश्किल है। आपने प्यार और मोहब्बत के साथ इस्तकबाल किया। मेरे दिल में बेपनाह मोहब्बत के जज्बात और भी जाग गए हैं। मैं पहले भी यहाँ आया मगर ऐसा मंजर और जज्बा कभी नहीं देखा। मेरे दिल में जो आपके लिए प्यार है वो आज भी जाग रहा है। 2017 में मुझे बेटे से तनख्वाह ना लेने की वजह से वजारत उज़्मा से निकाल दिया गया। नवाज शरीफ ने मजीद कहा कि मैं अल्लाह को हाजिर जानकर कह रहा हूँ कि अगर मुझे ना निकाला जाता तो हर घर खुशहाल होता, काश्तकार खुशहाल होता, बिजली और गैस के बिल महंगे ना होते, रोटी और नान आज भी 4 रुपए का मिलता। उन्होंने कहा कि अगर नवाज शरीफ को जाली मुकदमात में उलझाया ना जाता तो मुल्क का मकाम कहीं ऊंचा होता। पाकिस्तान दुनिया में मुनफरिद मकाम हासिल कर चुका होता। हमारे सब्ज पासपोर्ट की इज्जत होती। पाकिस्तान एशियन टाइगर बन चुका होता। हमने इस मुल्क से लोड शेडिंग खत्म की। लोग एक दूसरे का गला काटते रहे। हमने इस मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा किया। नवाज शरीफ ने कहा कि मोटरवे बनने से सफर आज आधे से भी कम हो गया है। हाफजाबाद के अवाम आज झूम रहे हैं। आज हाफजाबाद के अवाम को देखकर नवाज शरीफ भी झूम रहा है। हमारी हुकूमत रहती तो एक नई मोटरवे हाफजाबाद के अंदर से गुजर रही होती। जहां भी मोटरवे बनेगी वक्त दोबारा आएगा। साबिक वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि हाफजाबाद और लाहौर में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि 28 मई वाले मुल्क संवारने वाले जबकि 9 मई वाले
मुल्क पर हमला करने वाले लोग हैं। जलसे से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि आज पहली बार हाफिजाबाद आई हूँ। आज ये मंजर मुझे पूरी जिंदगी नहीं भूलेगा। तमाम कारकुनान को दिल की गहराइयों से शाबाश देती हूँ, सबको सलाम पेश करती हूँ। मरियम नवाज ने कहा कि सायरा अफजल तारड़ ने अच्छे और बुरे वक्त में नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ा। सायरा अफजल तारड़ मेहनती खातून है। 8 फरवरी को हाफिजाबाद में शेर धाड़ेगा। नवाज शरीफ के बाद बात करना मेरे लिए गुस्ताखी है। मुझे उम्मीद है हाफिजाबाद का हर शख्स नवाज शरीफ की बात पर गौर करेगा। मुझे यकीन है हर घर में नवाज शरीफ का पैगाम जाएगा। सीनियर नायब सदर नून लीग ने कहा कि मैंने अवाम से वादा किया था नवाज शरीफ को वापस लेकर आऊंगी। आज अल्लाह का शुक्र से नवाज शरीफ को वापस ले आई हूं। नवाज शरीफ ने कहा था हम 28 मई वाले लोग हैं, 9 मई वाले नहीं। 28 मई 1999 को एटमी धमाके हुए थे। नवाज शरीफ ने इस मुल्क को एटमी मुल्क बनाया था। मरियम नवाज ने कहा कि 28 मई और 9 मई वाले दिन कोई वाकयात नहीं, पूरी दास्तान है। 28 मई वाले मुल्क को संवारने वाले लोग हैं, 9 मई वाले एक तारीख है। उन्होंने कहा कि 28 मई वाले मोटरवेज और सड़कों का जाल बिछाने वाले लोग हैं। 9 मई वाले सड़कों का इस्तेमाल करके मुल्क को आग लगाने वाले लोग हैं। 28 मई वाले मुल्क से लोड शेडिंग का खात्मा करने वाले लोग हैं। सीनियर नायब सदर नून लीग ने कहा कि नवाज शरीफ का वक्त इस बात पर लगता है कि लोगों को कैसे खुशहाल करना है। जो आपके हाथ में पेट्रोल बम और डंडे देता है वो आपका हमदर्द नहीं। इस शख्स की वजह से नौजवान आज जेलों में सड़ रहे हैं। जो लोग 9 मई के सिलसिले में जेलों में बंद हैं उनसे किसी ने जाकर पूछा? मरियम नवाज ने नवाज शरीफ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जो यहाँ स्टेज पर बैठा है ये आपका हमदर्द है। नवाज शरीफ ने आपके हाथ में लैपटॉप्स दिए, हर घर में बिजली गैस होगी, बिजली के रेट्स कम होंगे। हम आवाम के लिए मैदान में हैं। आप पीपल्स पार्टी को भारी अक्सरियत से जितवाएं, लोगों की आमदनी डबल कर देंगे। बिलावल भुट्टो का इंतखाबी जलसे से खिताब 2018 के इंतखाबात के सिलसिले में आपके पास आया था, आपने साथ दिया, आपने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को जितवाया था। लॉन्ग मार्च के सिलसिले में भी आपके पास आया था। एक बार फिर आपके पास आया हूँ। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल कमेटी ने मुझे वजीर आजम नामजद किया है। आप हमारा साथ दें, विफाक में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाएंगे। आपसे वादा है कि वजीर आजम बनाए बेरोजगारी खत्म करूंगा। उन्होंने कहा कि जयाले आवाम को बताएं कि वो अपना वोट जाया ना करें। मुकाबला शेर और तीर का है, तीर को वोट दें। दीगर सियासी जमातें जाती दुश्मनी और जाती मफाद के लिए इलेक्शन लड़ रही हैं। हम आवाम के लिए मैदान में हैं। हमारी हुकूमत आई तो मजदूर कार्ड, किसान कार्ड, यूथ कार्ड लेकर आएंगे। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि नौशहर फिरोज शहर के लिए खास प्लान है। सैलाब से बहुत नुकसान हुआ, आपकी मदद करनी है। इक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी को पाकिस्तान लेकर आया। घर बनाने का मंसूबा सिंध में शुरू किया था। और नाजरीन, कोई भी मुल्क पाकिस्तान की तरफ देखेगा तो इसी तरह मुअस्सर जवाब दिया जाएगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था पाकिस्तान एक अमन चाहने वाला मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान पर हमला करने वाले अब 100 बार पहले सोचेंगे। हमने हमेशा दुनिया में अमन की बात की है और हमेशा दुनिया में अमन कायम रखने के लिए काम किया है। आसिफ अली जरदारी ने मजीद कहा कि पाकिस्तान की फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है और हमारी फौज बहुत अच्छे तरीके से मुल्क का दिफा करना जानती है। हम अपने हमसाया ममालिक से बेहतरीन ताल्लुका चाहते हैं, लेकिन सिर्फ बराबरी की बुनियाद पर। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ मुहिम चलाने वालों के खिलाफ मुश्तरका तहकीकाती टीम का अहम फैसला। सोशल मीडिया पर अदलिया को बदनाम करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। जराये के मुताबिक अदलिया मुखालफत नफरत अंगेज मवाद की रोकथाम के लिए JIT का कयाम 2 रोज कबल अमल में लाया गया, जिसका इजलास FIA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में हुआ। JIT की सरबराही एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA ने की। इजलास के दौरान हिसासदारों के अफसरों ने प्लान ऑफ एक्शन सरबराह JI को पेश कर दिया। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों की मालूमात इकट्ठी करने की हिदायत की गई है। PTA को कहा गया है कि मवाद अपलोड, शेयर और कमेंट करने वालों की तमाम तफसीलात दी जाएं। जराये के मुताबिक अगले मरहले में अदलिया मुखालिफ मवाद फैलाने वालों की गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। अब कुछ बात करते हैं इंतखाबात की। खैबर पख्तूनख्वा में सीट एडजस्टमेंट के लिए पीपल्स पार्टी, ANP, नून लीग और JUIFA की मुलाकातों का
कोई नतीजा न निकल सका। मुस्लिम लीग नून के सूबाई तर्जुमान इख्तियार वली ने कहा है कि JUI सीट एडजस्टमेंट में पंजाब में ज्यादा सीटें मांग रही थी और किसी हलके में ANP उम्मीदवार दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं। ANP का कहना है कि दीगर पार्टियों के उम्मीदवार हमारे मजबूत हलकों से इंतखाबात लड़ना चाहते थे, जबकि PP ने मौकफ अपनाया कि दीगर पार्टियों का हर उम्मीदवार समझता है कि वो जीत रहा है, इसलिए सीट एडजस्टमेंट ना हो सकी। तर्जुमान JUI फे ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं किया, सिर्फ जिला दीर में एक सीट एडजस्टमेंट हुई है। खबर दें कि अवामी मुस्लिम लीग के गिरफ्तार सरबराह और साबिक वफाकी वज़ीर शेख रशीद ने 9 मई से मुतालिक मुकदमात में दरख्वास्त जमानत दायर कर दी है। उन्होंने दरख्वास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में दायर की है। शेख रशीद की जानिब से दरख्वास्त वकील सरदार शहबाज के तवस्सुत से दायर की गई है, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया है कि शेख रशीद मुकदमे में नामजद नहीं है। उन्हें 9 मई के बाद से सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी जानिब अदालत ने शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत पर पुलिस को 20 जनवरी को रिकॉर्ड समेत तलब कर दिया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शकरगढ़ पुलिस और इंतजामिया ने साबिक नून लीगी रहनुमा और हल्का NA-75 से आजाद उम्मीदवार दानियाल अजीज का इंतखाबी जलसा रुकवा दिया। मुस्लिम लीग नून की जानिब से टिकट न मिलने पर दानियाल अजीज ने शकरगढ़ में पहला इंतखाबी जलसा मुनाकिद किया, जिसे पुलिस ने शुरू होने से पहले ही बंद करवा दिया। पुलिस ने जलसागाह से स्टेज और कुर्सियां हटाई, जबकि लाइटें बंद करवा के साउंड सिस्टम भी उठा लिया। इंतजामिया का कहना है कि दानियाल अजीज बगैर इजाजत जलसा कर रहे थे, जिसकी वजह से प्रोग्राम को रोका गया है। DSP सर्कल राय एहसान ने कहा कि अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नजर किसी भी सियासी प्रोग्राम के लिए इजाजतनामा जरूरी है। इंतजामिया की जानिब से एक्शन लेने के बाद दानियाल अजीज अपने साथियों के हमरा जलसागाह पहुंचे और मुज़ाकरात करने की कोशिश की, ताहम वो नाकाम हो गए। इंतजामिया ने दो टोक अल्फाज में कहा कि बगैर इजाजत कोई भी सियासी जमात या उम्मीदवार जलसा नहीं कर सकता। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि दिसंबर में पाकिस्तान का करंट अकाउंट $397 मिलियन के साथ सरप्लस रहा, जिससे बैनुल अक़वामी अदायगियों के लिए पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर हुई है। लेकिन मौशी सकड़ाव की सूरत में इसका नतीजा भी भुगतना पड़ रहा है। करंट अकाउंट सरप्लस में इजाफे की बुनियादी वजह तरसीलात ज़र की आमद और इम्पोर्ट्स में कटौती है। स्टेट बैंक के मुताबिक नवंबर के महीने में पाकिस्तान को करंट अकाउंट में $15 मिलियन के खसारे का सामना था। इस तरह रवा माली साल की पहली छमाही के दौरान करंट अकाउंट खसारा मजमूई तौर पर कम होकर $831 मिलियन रहा, जो कि गुज़िश्ता साल की इसी अरसे के 3.63 अरब डॉलर रहा था। इस तरह करंट अकाउंट में सालाना बुनियादों पर 70% बेहतरी देखी गई है। रवा माली साल का मुकम्मल करंट अकाउंट खसारा GDP का 1% से कम 2.5 अरब डॉलर रहने का इम्कान है, जबकि IMF ने यह तखमीना 1.6% यानी कि 5.7 अरब डॉलर जाहिर कर रखा है। अलावा अजीद दिसंबर में पावर, ऑयल और गैस समेत मुख्तलिफ सेक्टर्स में गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकार 6.4 गुना इजाफे के साथ $211 मिलियन रही, जो कि गुज़िश्ता साल के इसी अरसे के दौरान महज $33 मिलियन थी। गुज़िश्ता माह नवंबर के मुकाबले में ये इजाफा 61% है, जबकि पहली छमाही के दौरान बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी मजमूई तौर पर 35% इजाफे के साथ $878 मिलियन रही है, जो कि गुज़िश्ता साल के इसी अरसे के दौरान $640 मिलियन थी। खबरें और भी बुलेटिन के हिस्सा होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, अब आपको बताएं कि इस्राइली फौज ने गजा के पनाह गज़ीनों के कैंप रफा में घर पर बमबारी करके बच्चों समेत एक ही खानदान के 12 अफराद को शहीद कर दिया। 7 अक्टूबर के बाद से इसराइल ने अपनी जारियत को गजा पर जारी रखा हुआ है। अब तक शहीद बच्चों की तादाद 10,000 से तजावुज कर गई है, जबकि इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 24,285 हो गई है। 61,000 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी हो चुके। इसके अलावा गजा का तवील तरीन मवासलाती ब्लैक आउट भी 5वें रोज में दाखिल हो गया है। उधर हमास के जंगजुओं ने इसराइली फौजियों पर जवाबी हमले जारी रखे हुए हैं। हमास की जानिब से खान यूनिस में इसराइली फौज और गाड़ियों पर हमले किए गए हैं, जिसमें मुतादिद इसराइली फौजी हलाक और जख्मी हुए हैं, जबकि इसराइली इलाके में भी रॉकेट हमले करके इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि गजा में 22 लाख अफराद कहत के इंतहाई खतरे से दो चार हैं।
जिसके सबब अक़वाम मुत्तहिदा ने इमदाद की फौरी तरसील बढ़ाने पर जोर दिया है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि इसराइली यरगमालियों की रिहाई के लिए कतर में बातचीत कर रहे हैं। यमन के हूसी ग्रुप के बहिरे अहमर में जहाजों पर हमलों के बाद अमेरिका ने हूसी ग्रुप को दोबारा दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर लिया है। व्हाइट हाउस का कहना है कि हूसी ग्रुप को खुसूसी आलमी दहशतगर्द करार दे रहे हैं। ये इकदाम बहिरे अहमर में मुसलसल हमलों और खतरात पर किया गया है। व्हाइट हाउस का कहना है कि इस इकदाम का मकसद हूसी ग्रुप को इतहारों और माली इमदाद की फराहमी से भी रोकना है। हूसी ग्रुप बहिरे अहमर खलीज अदन में हमले रोक दे तो फैसले को बदला जा सकता है। दूसरी जानिब हूसी ग्रुप ने रद्द अमल में कहा है कि अमरीकी इकदाम के बावजूद इसराइल जाने वाले जहाजों पर हमले जारी रहेंगे। अमरीका का हमें दहशतगर्द करार देना हमारी कार्रवाइयों पर असरअंदाज नहीं होगा। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने 2021 में हूसी ग्रुप को दहशतगर्दों की फहरिस्त से निकाल दिया था। वाज़ेह रहे कि यमन के हूसी बागी इसराइल की जानिब से गजा की पट्टी में फलस्तीनियों के खिलाफ जारी नस्लकुशी के जवाब में इसराइल जाने वाले बहरी जहाजों को निशाना बना रहे हैं। दुनिया की दो सबसे बड़ी शिपिंग कंपनियों MSC और मारिस्क ने भी अपना दिसंबर में बहिरा अहमर में अपना ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया था। 18 दिसंबर को अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने हुसियों के हमलों का मुकाबला करने के लिए बहरी फौज की तश्कील का ऐलान किया। ताहम स्पेन, इटली और फ्रांस समेत कई ममालिक इस इत्तेहाद से दस्तबरदार हो चुके हैं। आम इंतखाबात और पाकिस्तान की बदलती सूरत हाल से मुतालिक इस्लामाबाद में वजारत इत्तलात की जानिब से सेमिनार का इनेकाद किया गया। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से सोनिया मलिक की इस रिपोर्ट में। आइंदा आम इंतखाबात और पाकिस्तान की बदलती सूरत हाल से मुतालिक इस्लामाबाद में वजारत इत्तलात की जानिब से सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस सेमिनार का मकसद लोगों को इलेक्शन के हवाले से आगाही फराम करना था। सेमिनार में मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों के अलावा सहाफत से वाबस्ता शख्सियात ने भी शिरकत की। सेमिनार में टेबल टॉक पर तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों को मुकम्मल इजहार राय का मौका दिया गया। सेमिनार में मौजूद तमाम हाजरीन ने वजारत इत्तलात की जानिब से आज किए जाने वाले इस सेमिनार को खूब सराहा। मंशूर कमेटी जमात इस्लामी पाकिस्तान के सेक्रेटरी मोहम्मद असगर ने कोहिनूर से बात करते हुए कहा कि मेरा ख्याल ये है कि हर सियासी जमात को यहाँ मौका दिया गया था कि वो अपने मैनिफेस्टो को बयान करे और यहाँ पे जो उसके सेलिएंट फीचर्स हैं उसको सामने लेकर आए और ये बताए कि आइंदा आने वाली पार्लियामेंट के अंदर अगर उनको अवाम वोट देती है तो उसके अंदर क्या रोल प्ले करेंगे, उस पार्लियामेंट को किस तरह स्ट्रेंथन करेंगे, उस जमहूरी निज़ाम को किस तरह स्ट्रेंथन करेंगे और उस हुकूमत को किस तरह स्ट्रेंथन करेंगे कि जिसके नतीजे में अवाम को कोई रिलीफ मिले। अवाम के जितनी मुसीबतें हैं, जो मुश्किलात हैं, चाहे वो माली मुश्किलात हैं, चाहे वो सेहत के हवाले से हैं या तालीम के हवाले से हैं या उनके रोज़गार के हवाले से हैं, उनके इंसाफ के हवाले से हैं, तो ये चीज़ें सारी की सारी जो है ना, सब पार्टियों का अपना अपना एजेंडा है। जमात इस्लामी वाहिद जमात है कि जिसने कि अपना एक मरबूत और कम्प्रिहेंसिव अपना एक मैनिफेस्टो पेश किया है और उसको हम अपने हर फोरम्स के अंदर ले जाकर आवाम तक पहुंचा रहे हैं। सेमिनार्स होने चाहिए और मैं समझता हूँ कि ये प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का एक अच्छा कदम है कि इन्होंने संजीदा लिया इस बात को कि लोगों के ख़ास तौर पर नौजवान वोटर्स के शऊर में इजाफा किया जाए, अहमियत को समझा जाए। और पाकिस्तान में चूँकि इलेक्शन आम तौर पर मुतनाज़ा ही रहे हैं और इस इलेक्शन पे भी पहले से बहुत से सवालात उठ गए हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि लोग अपना हक़ की रायदही इस्तेमाल करें। सेमिनार में मौजूद तमाम हाजरीन ने वजारत इत्तलात की जानिब से आज किए जाने वाले इस सेमिनार को खूब सराहा और मुख्तलिफ सूबों में भी ऐसे सेमिनार करवाने की ख्वाहिश का इजहार किया। कैमरामैन मोहम्मद सलमान के साथ सोनिया मलिक, कोहिनूर न्यूज़। रावलपिंडी कैंट के सबसे बड़े और मसरूफ तरीन कारोबारी मरकज सदर में बिजली ज़ेर ज़मीन मंसूबे पर काम का आगाज कर दिया गया। तकरीब में कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज, DGML&C मेजर जनरल इरफान अहमद मलिक, डायरेक्टर रावलपिंडी रीजन आमिर मसूद खान, प्रेसिडेंट और स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर अहमद नवाज, कमिश्नर रावलपिंडी, वाइस प्रेसिडेंट मलिक मुनीर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रावलपिंडी कैंट सैयद अली इरफान रिजवी और दीगर अफसरान शरीक हुए। मज़ीद जानते हैं चौधरी गुलजार नाज की इस रिपोर्ट में। कैंट के सबसे बड़े और मसरूफ तरीन कारोबारी मरकज सदर में बिजली ज़ेर ज़मीन करने के प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया गया है। पहले मरहला में माल रोड से ज़ेर ज़मीन केबलिंग पर काम का आगाज़ किया जाएगा।
ज़ेर ज़मीन केबलिंग को फेज़ 1 को मरहला वार मुकम्मल किया जाएगा। रावलपिंडी कंटोनमेंट ने पहले मरहले में सिविल वर्क्स के टेंडर का प्रोसेस मुकम्मल किया था। फेज़ 1 में माल रोड, सर्विस रोड, शुमाली हैदर रोड, बैंक रोड, कश्मीर रोड, केनिग रोड और इसके साथ लिंक रोड शामिल हैं। सेक्रेटरी वजारत दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमूदुज़्ज़मान खान ने रावलपिंडी सदर में ज़ेर ज़मीन केबलिंग प्रोजेक्ट की तकरीब ज़मीन कुशाई इंजाम दे दी। तकरीब में कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज, DGML&C मेजर जनरल अरफान अहमद मलिक, डायरेक्टर रावलपिंडी रीजन आमिर मसूद खान, प्रेसिडेंट व स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर अहमद नवाज, कमिश्नर रावलपिंडी वाइस प्रेसिडेंट मलक मुनीर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रावलपिंडी कैंट सैयद अली इरफान रिजवी व दीगर अफसरान ने शिरकत की। इस मौका पर सैयद अली इरफान रिजवी का कहना था कि वो कैंट के मकीनों और ताजरों की खुशहाली और इलाके की तरक्की के लिए कोशा हैं, जिसमें न सिर्फ रावलपिंडी कैंट की खूबसूरती में इजाफा होगा बल्कि रावलपिंडी कैंट तरक्की के एक नए दौर में दाखिल होगा। कैंट के अवाम को बेहतर माहौल फराहम करना हमारी अवलीन तरजीह में शामिल है। ज़ेर ज़मीन केबलिंग प्रोजेक्ट एक नया मंसूबा है। बिजली के निज़ाम की अंडरग्राउंड मुंतकली के प्रोजेक्ट पर काम में मियार और वक्त पर प्रोजेक्ट तकमील को यकीनी बनाने की हदायत जारी की गई हैं। सदर के बाजारों में बिजली का निज़ाम ज़ेर ज़मीन करने से बिजली के निज़ाम में हिफाजत और हादसात का खात्मा होगा। इस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले ट्रैफिक पुलिस, इंतजामिया, पंजाब हुकूमत और अंजुमन ताजरान को एतमाद में लेकर इस प्रोजेक्ट का आगाज किया गया है। कैमरामैन नाज़रीन, वज़ारत दिफाई पैदावार का काबिल फ़ख्र इदारा नेशनल रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन 5 दहाइयों से इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉर अफेयर आलात की तैयारी में मसरूफ है। NRTC जदीद और बेहतरीन मसनूआत की फराहमी में सफ़े अव्वल का इदारा है। सरहदी निज़ाम समेत टैंकों की तैयारी तक कामयाबियां समेटी हैं। मजीद जानते हैं अली असगर की इस रिपोर्ट में। नेशनल रेडियो एंड कॉरपोरेशन एक ज़िली इदारा है जो मुसलसल 1966 से वज़ारत दफ़ा के ज़ेर निगरानी काम कर रहा है। मुख्तलिफ अमूर पे काम करता रहा है और आज भी दहशत गर्दी या मुख्तलिफ चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स दिफा के लिए बनाता रहा है। और हमारे साथ कुछ यहाँ के लोग मौजूद हैं, उनका क्या कहना है? NRTC, National Radio and Telecom Corporation, established in 1966. We have the experience of more than 5 decades working in the field of military communication, radars, jammers. बेसिकली हमारा जो मोटिव है, हम पाक आर्मी की जितनी भी सिक्योर और टेक्निकल मिलिट्री कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट्स है उनको हम पूरा करते हैं। तो ये हम कहें कि जो वॉर ऑन टेरर है फ्रॉम 2010 और 2005 के ऑनवर्ड, तो उसमें अगर कोई सिविल इदारे का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है टू काउंटर टेररिज्म, उसमें NRTC वन ऑफ टॉप 3 में NRTC का शुमार है। जो हमारा रडार है ये ह्यूमन को 6 to 7 किलोमीटर तक डिटेक्ट करता है और जो व्हीकल है उसको 12 to 13 किलोमीटर तक डिटेक्ट करता है। अब ये तो जहाँ पे डिप्लॉय होगा वहाँ पे जो आपका बेस है वहाँ तक आपको विद इन फ्यू सेकंड्स जो है वो अलार्म आ जाएगा। फिर जो वहाँ पे जो फोर्सेज हैं वो उसके मुतालिक आगे एक्ट करेंगी कि आगे इसको किस तरह से करना है। तो अगर हम इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स की बात करें तो हमारे पास बहुत से ममालिक है, गल्फ़ कंट्रीज़, तो मैं ऐसे स्पेसिफाई नहीं कर सकता उन्हें, लेकिन गल्फ़ कंट्रीज़ है, यूरोपियन कंट्रीज़ भी हैं उसमें और अफ्रीकन कंट्रीज़ भी हैं। वज़ारत दफ़ा में आप किन किन कुछ चीज़ों को तैयार करके सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं? इसमें हमारे पास रेडार्स वगैरह आ जाते हैं, जैमर्स वगैरह आ जाते हैं। जैमर्स वगैरह तो हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑल अलोंग द पाकिस्तान, इवन कि हमारे पास पुलिस आ जाए, मिलिट्री आ जाए, सारी आर्म फोर्सेस आ जाए, उनको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और रेडार्स वगैरह जो है ये टू बी स्पेसिफिक मिलिट्री एक एप्लीकेशन है। इसमें हम फिर पैरामीट्रिक सिक्योरिटी भी करते हैं, जो हमारे पास इनसाइड द कंट्रीज़ कुछ पैरामीटर्स को हमने सिक्योर करना होता है, हमारा रेडार वो भी कर रहा है, ठीक है, और अलॉन्ग द बॉर्डर भी हमारे सिक्योर कर रहा है। और इसमें डिफरेंट इंजीनियर्स जो हैं डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस पे काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास अभी फ़िलहाल मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल, टेलीकॉम के सारे अवेलेबल है। और कम्युनिकेशन से लेके हमारा मतलब जैमर्स, एंटी ड्रोन सिस्टम, यहाँ पर इनकी R&D होती है और कस्टमर की फीडबैक पे हम इसको डेवलपमेंट करते रहते हैं साथ साथ, और कस्टमर की ही फीडबैक पे उसी पे हम उसकी डेवलपमेंट के साथ साथ उनको डिप्लाई करके देते हैं। तो जो सामान का जो तैयार होता है उसका चेक एंड बैलेंस का क्या तरीकाकार होता है? देखिए, हमारा जो सामान तैयार होता है, हमारा एक इंटरनल जो है ना क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, जो कि सबसे पहले हमारा वो इंडिपेंडेंट ऐसा डिपार्टमेंट है कि जो कि इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और उसी की ही प्रोडक्ट की क्वालिटी कॉन्शियस को वो सारा मीट करता है उसी पैरामीटर्स पे। और जो भी कस्टमर की तरफ से हमारी GSR आती है, फीडबैक आता है, उस पर सारे के सारे को पूरा उतरता है। फॉर एग्जाम्पल आप जब कोई सामान चेक करते हैं, एक भी ख़राब निकल आता है तो वो सारा को उसको रिजेक्ट करते हैं, उसको क्या तरीका? एक भी हमारे लॉट वाइज एक भी इक्विपमेंट ख़राब हो जाता है, दोबारा हम उसको उस पर वर्क करते हैं, उसको रिपेयर करते हैं और
उस पे जो है ना वो दोबारा उसी प्रोसेस के थ्रू क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट से गुजर के फिर दोबारा हम कस्टमर को जो है ना इंस्पेक्शन के लिए जो है इशू करते हैं। नेशनल रेडियो और कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन जो 1966 में बना था, ये वफाकी वजारत दफा दिली इदारा है जो मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पर तैयार कर रहा है। यहाँ पर ड्रोन्स, जैमर्स, ये चीज़ें ये तैयार कर रही है। पाकिस्तान और पाकिस्तान के दिगर ममालिक को भी ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। खासतौर पर अगर मैं बात करूँ तो पंजाब पुलिस दिगर फोर्सेस को भी ये सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं। इस अदारे का मकसद ये है कि सिक्योरिटी और बॉर्डर्स वगैरह, स्मगलिंग वगैरह, ह्यूमन राइट्स वगैरह को रोकने के लिए काम कर रहा है। ये 1966 में कायम हुआ था और पाकिस्तान की तरक्की का अहम किरदार अदा करता है। खासतौर पर अगर मैं बात करना चाहूँ दहशत गर्दी में इसका अदारे का किरदार अहम है, क्योंकि इसको जैमर्स वगैरह दिगर चीज़ें वगैरह जो बनाने में अदारा काम कर रहा है। 2010 में जब दहशत गर्दी की वारदातें बढ़ रही तो उस वक्त से ये इदारा मजीद रात दिन एक करके पाकिस्तान की दहशत गर्दी की लपेट में जो है इसने अपना क्लियर किरदार अदा किया। NA-128 से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग नून के मुश्तरका उम्मीदवार ओन चौधरी के हल्के में इंतखाबी मुहिम जारी है। ओन चौधरी और राना एहसन शराफत की नून लीग रहनुमा ख्वाजा अहमद हसन से मुलाकात हुई। सियासी सूरत हाल और इलेक्शन मुहिम पर तबादला ख्याल किया गया। ओन चौधरी की ख्वाजा अहमद हसन और एहसन शराफत के हमरा GR1 शाहकारी के इलाके में डोर टू डोर मुहिम। अहले इलाका ने शानदार इस्तकबाल किया, फूलों की पत्तियां निछावर की। शाहकारी के रिहायशियों का कहना था कि ओन चौधरी और राना एहसन शराफत को कामयाब बनाएंगे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर लाहौर ग्लोबल विलेज के सेल्स और मार्केटिंग CBD पंजाब को देने के समराज सामने आ गए हैं। लाहौर ग्लोबल विलेज की 9 साल के बाद कामयाब बिडिंग मुकम्मल कर ली गई है। LDA वॉक एंड शॉप अरीना का नाम तब्दील करके लाहौर ग्लोबल विलेज रखा गया है। CBD पंजाब ने लाहौर ग्लोबल विलेज की कामयाब बिडिंग मुकम्मल कर ली है। CBD पंजाब की ऑक्शन कमेटी ने तमाम ज़वाबित पूरे करते हुए बुट को मंजूर किया है। CEO CBD पंजाब इमरान अमीन ने कामयाब बुट को मुबारकबाद दी। उनका कहना था कि लाहौर ग्लोबल विलेज एरियाने लाहौर के लिए एक मुनफरिद मंसूबा है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर CBD पंजाब सूबा पंजाब और लाहौर की तरक्की के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। और अब आपको बताएं कि पंजाब रेड क्रिसेंट सोसाइटी के ज़रिए एहतमाम क्वीन मेरी कॉलेज लाहौर में थैलेसीमिया के मरीज बच्चों के लिए खून की एहतियात जमा करने के लिए ब्लड कैंप का इनेकाद किया गया। कॉलेज प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर सिद्रा आमिर ने कैंप का इफ्तिताह किया, जबकि हिलाल अहमद की इंचार्ज प्रोफेसर हुमा उस्मान, अम्बरीन अकरम और लेक्चरर क्वीन मेरी कॉलेज ने कैंप के इनेकाद में मुआवनत फराहम की। कैंप में तालबात की कसीर तादाद ने थैलेसीमिया के मरीज बच्चों के लिए खून के एहतियात दिए। प्रिंसिपल डॉक्टर सिद्रा आमिर ने ब्लड कैंप का दौरा किया और वहां पर मौजूद हत्या करने वाली तालिबात के हौसले को सराहा। इस मौके पर पंजाब रेड क्रिसेंट सोसाइटी की फौजा सईद और उनकी टीम ने कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर सिद्रा आमिर का कैंप के इनेकाद पर शुक्रिया अदा किया और उन्हें शील्ड और सर्टिफिकेट दिया। कैंप में आयशा अमीन ने बतौर रजाकार खिदमत सर अंजाम दी। खबर शामिल करें, आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से चीनी कौंसल जनरल याओ शरीन और चीनी माहिरीन माहौलियात के वफ़द ने मुलाकात की। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने चीन के माहिरीन माहौलियात से समूह के खात्मे पर तबादला ख्याल किया है। मुलाकात का मज़ीद अहवाल भी जानेंगे। आपको बताते चलें कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से चीनी कौंसल जनरल याओ शरीन और चीनी माहिरीन माहौलियात के वफ़द ने मुलाकात की है। मुलाकात का मज़ीद अहवाल जानते हैं ब्यूरो चीफ चौधरी शहबाज अराई से। जी चौधरी शहबाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से चीन के कौंसल जनरल शीरीन और चीनी माहिरीन माहौलियात के वफद ने मुलाकात की। मुलाकात में स्मोक के खात्मे के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। चीनी माहिरीन के वफद ने लाहौर में स्मोक के असबाब के बारे में इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश की। इब्तदाई रिपोर्ट में बताया गया है कि नामियाती और गैर नामियाती ईंधन का गैर जरूरी इस्तेमाल फिजा में ज्यादा नमी स्मोक का बाइस बन रही है, जबकि गर्दो गुबार और घरों में जलाई जाने वाली गैस भी स्मोक के असबाब में शामिल है। रिपोर्ट में बताया गया कि इंडिया से कोल प्लांट से आने वाली मुजर फिजा भी पाकिस्तान में स्मोक का बाइस बन रही है। चीनी माहिरीन का मोहसिन नकवी को बताना था कि मुख्तलिफ अनासर का मखसूसी तनासिब लाहौर के और गिरदो नवा में स्मोक का सबब बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन समेत मुख्तलिफ अनासर के मराकिब स्मोक का रूप धार लेते हैं। चीनी वफद का कहना था कि पंजाब हुकूमत ने स्मोक के सद्देबाब के लिए मौसर इकदाम किए और बेहतरीन पॉलिसी अपनाई है। चीनी वफद से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना था कि स्मोक के सद्देबाब के लिए जामिया और ठोस रिपोर्ट चाहिए ताकि हुकूमत को आइंदा स्मोक के कंट्रोल में आसानी हो।
मोहसिन नकवी का कहना था कि स्कूल बंद होने, फसलों की बाकियात जलाने पर पाबंदी और ट्रैफिक में कमी के बावजूद स्मोक का होना काबिले गौर है। मोहसिन नकवी ने चीनी माहिरीन की आमद का खैर मकदम करते हुए कहा कि आपकी जानिब से जामिया रिपोर्ट की तवक्को करते हैं। मोहसिन नकवी का कहना था कि स्मोक सद्देबाब के लिए चीनी माहिरीन को जरूरी डेटा फराम करेंगे। स्मोक के मसले को हल करने के लिए बहुत से सवालात के जवाबात दरकार हैं। जानना चाहते हैं किस अनासर की वजह से स्मोक मुज़र सेहत शक्ल इख्तियार करती है। चीनी सफीर और माहिरीन के वफद ने मोहसिन नकवी और इनकी टीम का मेजबानी का खैर मकदम किया और कहा कि स्मोक का मसला हल होने में वक्त लगेगा। चीन ने 7 साल में इस पर काबू पाया था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। PPA 169 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार सुलेमान बलोच की इंतखाबी मुहिम जारी है। हल्के में डोर टू डोर कैंपेन के दौरान अहम शख्सियात और शहरियों की मुलाकातें की, तराजू के लिए हिमायत भी मांगी। मजीद जानते हैं आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। उम्मीदवार PPA 169 अहमद सुलेमान बलोच की तराजू इंतखाबी मुहिम जारी। रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सुलेमान बलोच की हल्का में मुख्तलिफ अहम शख्सियात से मुलाकात, डोर टू डोर अहले इलाका से मुलाकातें की और तराजू के लिए हिमायत भी मांगी। अहमद सुलेमान बलोच ने मुस्लिम टाउन में माहिर तालीम मिस्टर बसम से मुलाकात की। जीनत ब्लॉक इलामा इकबाल टाउन में आगा सखावत से मुलाकात की। करीम ब्लॉक इलामा इकबाल टाउन में मोअज़्ज़िज़ इलाका से मुलाकातें जारी। हुमा ब्लॉक इलामा इकबाल टाउन में अहले इलाका से मुलाकात। इलामा इकबाल टाउन में सियासी व समाजी शख्सियत मौलादाद आसी से मुलाकात। नजफ कलोनी बाजार में अहले इलाका से मुलाकातें। रहमानपुरा में जामिया मस्जिद नवाबुद्दीन पर अहले इलाका से मुलाकात। ताजर रहनुमा रहमानपुरा अब्बास गुजर से भी मुलाकात हुई और तराजू पर बात हुई। मुफ्ती मोहम्मद उमर की जानिब से नाश्ते में शिरकत की। इस मौके पर अहमद सुलेमान बलोच का कहना था, शेर को वोट देना, तीर को वोट देना और तीर पर मोहर लगाना शेर पर मोहर के मुतरादिफ है। मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी यकजा दो कालिब है। PDM की पार्टियां इनकी साथी हैं। लोगों को धोखा के लिए लड़ाई का मजबूरी माहौल बनाया जा रहा है। इलेक्शन के बाद फिर एक हो जाएंगे। निजात का वाहिद रास्ता जमात इस्लामी पुर इत्माद और तराजू पर मोहर लगाना है। यही वो वाहिद जमात है जो मुल्क से करप्शन का खात्मा करेगी और बेरोजगारी में बेहतरी लाएगी। उम्मीदवार PPA 169 अहमद सुलेमान बलोच की तरह। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में शहरियों की सहूलत और ट्रैफिक रवानी में बेहतरी के लिए जामे मंसूबे पर अमल दरामद जारी है। सड़कों की बहाली के साथ साथ तजावुजात के खात्मे के लिए भी कार्रवाइयां जारी है। चीफ ऑफिसर इकबाल फरीद की निगरानी में शादबाग, मिस्री शाह, नाखुदा चौक और टोकेवाला के इलाकों में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। मजीद जानते हैं अपने रिपोर्टर जुनैद अशरफ से। जी जुनैद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, देखिए शहर लाहौर की बात करें तो शहरियों की सहूलत और ट्रैफिक रवानी में बेहतरी के लिए जामे मनसूबा बंदी पर अमल दरामद किया जा रहा है। सड़कों की बहाली के साथ साथ तजावज़त माफिया के खिलाफ भी जो है कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। DC लाहौर व एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफिया हैदर की हिदायत पर इंसदाद तजावज़त ऑपरेशन में तेजी की गई है। शादबाग, मिस्री शाह, नाखुदा चौक, टोकेवाला चौक के मुख्तलिफ इलाकों में जो है ऑपरेशन किया गया। चीफ ऑफिसर इकबाल फरीद और जोनल ऑफिसर जो है शालामार फारज जुबैर जो है ऑपरेशन की निगरानी उन्होंने किया है। ऑपरेशन के दौरान 200 से ज्यादा पुख्ता शेड और थड़े मस्मार कर दिए गए हैं, जबकि 3 ट्रक सामान जब्त करके स्टोर में जमा करवाया गया है। 60 से ज्यादा आधी तजावज़त का सामान स्टोर में जमा करवाया गया। तजावज़त खिलाफ वर्जियों पर 20 नोटिस और 20 जुर्माने जो है वो किए गए हैं। इसके साथ साथ आपको बताता चले DC लाहौर की हिदायत पर गाजी रोड पर भी ऑपरेशन किया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन साहिबजादा यूसुफ ने सरबराही की है। AC कैंट नबील मेमन और MOR इकबाल खान भी मौजूद थे। गाजी रोड पर ऑपरेशन के बाइस जो है शदीद ट्रैफिक मसाइल में जो है कमी होगी। इंसदाद तजावज़त ऑपरेशन में 256 से ज्यादा पुख्ता शेड और थड़े मस्मार कर दिए गए हैं। ट्रैफिक मसाइल में रुकावट बनने वाले 150 से ज्यादा आधी तजावज़त जब्त कर लिए गए हैं। 5 ट्रक सामान जो है वो वहां पर जब्त किया गया है। DC लाहौर व एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर का कहना है कि तजावज़त माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनैद अशरफ, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और नाजरीन, मुजफ्फरगढ़ के दूल्हे ने अपनी नई जिंदगी के सफर का मुनफरिद आगाज किया। थाना सिटी मुजफ्फरगढ़ आकर अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ फोटो शूट करवाया और खूब तारीफ की। दुल्हे अब्दुल समद का गुफ्तगू करते हुए कहना था कि उन्होंने सोशल मीडिया पर थाने की नई बिल्डिंग देखी, बेगम से मशवरा करके SHO से इजाजत मांगी। SHO खुरम रियाज खर ने फोटो शूट की न सिर्फ इजाजत दी बल्कि
थाने के फ्रंट एंड को खाली करवा कर बेहतरीन पुरअमन माहौल भी फराहम किया, जहां उन्होंने अपनी बेगम के साथ जिंदगी के बेहतरीन लम्हात को तस्वीर में कैद किया। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार भी।